हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 मई 2023 के इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द डेली हिंदू एडिशन। सो as you can see the front page, here we are going to discuss India gets new parliament house, PM says it's symbol of aspirations. Okay, so you will see the new parliament house. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। सो now it has been inaugurated, yesterday it was inaugurated. So यहाँ पे अगर हम देखें जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में यू डोंट हैव सेंट्रल हॉल। तो यहाँ पे फिर जॉइंट सिटिंग्स कहाँ पे होंगी? So the joint sitting, it will take place in Lok Sabha. Okay. Then after the development of parliament, now it has been inaugurated. So now the focus will be on building a vice president and prime minister's residence and office. Okay. So this will be the new target of a new parliament building. तो इसके बारे में हम नेशनल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द न्यू पार्लियामेंट हाउस, यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं पार्लियामेंट हाउस में। So let's turn to the national page first. So this is about the new parliament building. So if we will see, यहाँ पे जो important चीज़ें हैं, that is Foucault pendulum. एक आपको यहाँ पे मिलेगा Foucault pendulum, which is named after French physicist Leon Foucault. तो ये जो Foucault pendulum होता है, it is used to demonstrate the Earth's rotation. अगर आप पार्लियामेंट की लैटिट्यूड देखें, so at the latitude of parliament it takes 49 hours 59 minutes and 18 seconds for the pendulum to complete one rotation. So that is the Foucault pendulum. उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सेक्शन ऑफ द नाइट स्काई ओवर न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 1950, that is the Republic Day. Then if you will see, roughly rupees 200 crore was spent to decorate the interiors, an area of about 64,500 square meters. The next is there is a gallery जिसका नाम है शपत्य दीर्घ. So it has murals on protected monuments under the Archaeological Survey of India and the UNESCO list. उसके बाद there are different yoga asanas which are digitally projected on top of all these installations. Then if you will see, the next important things about the Lok Sabha and Rajya Sabha chambers. So the Lok Sabha and Rajya Sabha chambers, they boasted digitized voting system, then well engineered acoustics and state of the art audio visual system. उसके बाद there are 3 ceremonial powers where there will be huge brass images. There are huge brass images of Mahatma Gandhi, Chanakya, Gargi, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar and the chariot wheel from the Sun Temple at Konark which are at the display. उसके बाद जो इंटीरियर्स है लोकसभा का, इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द नेशनल बर्ड पीकॉक, while the Rajya Sabha depict the national flower lotus. Now coming to the next focus, now shifts to Vice President Enclave, new PMO, MP's chambers. Now after the construction of new parliament building which has been inaugurated, now there will be renewed focus on the construction of Vice President Enclave, Common Central Secretariat building, Defense Enclave, MP's chambers and Prime Minister's new residence and office. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इट इज अ सेकंड प्रोजेक्ट दैट हैज बीन कंप्लीटेड. द फर्स्ट वाज द रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू स्ट्रेचिंग फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट. If you will see over here that infrastructure firm Larsen and Toubro Limited is constructing the executive enclave housing PMO, Cabinet Secretariat, India House and National Security Council Secretariat. The next is a Foucault pendulum swings inside the new parliament. So यहाँ पे अगर आप देखें Foucault pendulum, तो इट हैज़ बीन डिजाइन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो सबसे पहले दैट इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी. पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पे है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी में. द नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड इंस्टॉल्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता. द थर्ड इज इट इज नेम्ड आफ्टर लियोन फॉकल्ट हु वाज द फ्रेंच फिजिस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज दिस डिवाइस? तो ये जो डिवाइस है ये बताता है अर्थ के रोटेशन के बारे में. फाइन. अब यहाँ पे देखिए कि फौकॉल्ट पेंडुलम में होता क्या क्या है. तो सी द पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ बॉब सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग वायर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सीलिंग एज यू कैन सी हियर. उसके बाद जैसे जैसे पेंडुलम स्विंग करता है, ठीक है, तो जो इमेजिनरी सरफेस है अक्रॉस विच द वायर एंड बॉब स्वाइप, इट इज कॉल्ड एज द प्लेन ऑफ द स्विंग. तो ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, प्लेन ऑफ द स्विंग. जैसे कि ये पेंडुलम है, इससे कुछ लटक रहा है और वो ऐसे इस तरीके से स्विंग कर रहा है.
तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्लेन ऑफ द स्विंग। तो अगर पेंडुलम जो है वो नॉर्थ पोल में है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट विल बेसिकली बी स्विंगिंग एज द अर्थ रोटेट्स बिलो। फाइन। तो जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, आप नॉर्थ पोल पे कहीं खड़े हो और ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अर्थ जो है वो नीचे है। अगर आप यही साउथ में हो तो इसका मतलब अर्थ जो है वो आपके ऊपर है। अब अगर आके देखें दैट अगर ये पेंडुलम को आपने इक्वेटर पे इंस्टॉल किया, देन द प्लेन वोंट अपीयर टू शिफ्ट एट ऑल बिकॉज इट विल बी रोटेटिंग अलोंग विद द अर्थ। देन अगर किसी और लैटिट्यूड पे आप हैं, देन द प्लेन विल शिफ्ट थ्रू 660 डिग्रीज इन वन साइड रियल डे डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ इट्स लोकेशन। उसके बाद हम इंडिया की अगर बात करें तो 1991 में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे कमीशन द कंट्रीज फर्स्ट फॉकल्ड पेंडुलम फॉर पब्लिक डिस्प्ले फ्रॉम द NSCM, but after several studies and field tests, the NSCM installed the setup in 1993. The next important news is that India sees reduction in stunting but wasting obesity are concerned, says the report. तो एक रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट का पहले देखिए नाम क्या है। ये रिपोर्ट है जॉइंट मैल न्यूट्रिशन एस्टीमेट। 3 एजेंसी ने मिलकर इस रिपोर्ट को निकाला है, एक है यूनिसेफ, दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड बैंक। फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस रिपोर्ट के बारे में क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले आप पैटर्न समझिए यहाँ पे। फर्स्ट इज इंडिया कंटिन्यूज टू शो अ रिडक्शन इन स्टंटिंग एंड रिकॉर्डेड 1.6 करोड़ फ्यूअर स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज बिटवीन 2012 एंड 2022। ये पहला, इसका मतलब स्टंटिंग जो है वो रेड्यूस हुआ है। बट वेस्टिंग, ठीक है, मतलब कि हाइट के हिसाब से मास बॉडी का वेट ना होना, वेस्टिंग जो है इट कंटिन्यूज टू रिमेन अ कंसर्न। ओके। अब हम कुछ परसेंटेज अगर यहाँ पे देखें तो स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years इन इंडिया इट ड्रॉप फ्रॉम 41.6% टू 31.7%, अराउंड 10% ड्रॉप है यहाँ पे। उसके बाद अगर नंबर्स देखें तो 52 लाख से 36 लाख का नंबर है। फाइन। उसके बाद आप देखें इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टंटिंग इट डिक्लाइन फ्रॉम 30% टू 25%। उसके बाद वेस्टिंग देखिए तो इन 2022 इट वाज 18.7% इन इंडिया और जो ग्लोबल शेयर है वो कितना है 49%। उसके बाद जो प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी है इट मार्जिनली इंक्रीज्ड इन अ डिकेड फ्रॉम 2.2% टू 2.8% इन 2022। नंबर वाइज देखें तो करेंटली ये 31.8 लाख है फ्रॉम 27.5 लाख। आफ्टर दैट वी विल सी that stunting it declined from a prevalence rate of 26.3% to 22.3%. अब कुछ चीज़ें जो है इफ यू विल सी दैट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट ऑन द वेट इशू वर्ल्ड वाइड। फाइन। तो द प्रेवलेंस रेट हैज ग्रू फ्रॉम 5.5% टू 5.6%। उसके बाद जो ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ 6.8% इन 2022 बड़ी जो कंपैरिजन है इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द पास्ट ईयर्स। अब यहाँ पे अगर हम गोल देखें, ठीक है, तो 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो एंडिंग हंगर जो टारगेट 2 है, and it says that only about 1/3 of all countries are on track to decrease the number of children affected by stunting by 50%. Okay. उसके बाद जो ये डेटा है इट इज़ इन लाइन विद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो इट सेज द डिक्लाइन इन स्टंटिंग इन इंडिया इज commensurate with National Family Health Survey 5, which estimated that its prevalence at 35.5%। स्टंटिंग के बारे में बात हो रही है as compared to 38% in 2016 and 48% in 2006. चलिए, now see about the dengue. So यहाँ पे डेंगू में है कि from prevalence in 8 states in 2001, dengue now is a nationwide infection. So अगर आप देखें कि as the country gets ready to welcome the southwest monsoon, okay, तो जब भी साउथ वेस्ट मानसून या बारिश का सीजन आता है तो डेंगू केसेस जाइका केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। पहले जो इसका रिस्ट्रिक्शन था वो 8 स्टेट्स में था, ठीक, बट नाउ इट इज़ नाउ अ नेशन वाइड फिनोमिनन। उसके बाद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टीमेट है इट सेज ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ डेंगू हैज ग्रोन ओवर रिसेंट डिकेड विद हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ एट द रिस्क। अब यहाँ पे अगर हम देखें ICMR का जो कहना है दैट रिस्क फ्रॉम डेंगू विच इज नाउ एंडेमिक इन मोर देन 100 कंट्रीज हैव बीन प्रोपेल्ड बाय सेवरल फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डेंगू जैसे बीमारियों का जो है वो फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। फाइन। अब देखिए कुछ चीज़ें जो रिस्क है यहाँ पे लाइक डे बाइटिंग हैबिट
multiple biting, long incubation period, fast transport, eggs retained up to 1 year, okay, container breeding, human environment and intermittent water supply, and poor waste management at construction sites. These are some of the problems for the occurrence of dengue in India. अब हेल्थ पे फिर से एक और न्यूज है, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट सेट अप पैनल टू इम्प्लीमेंट सेंटर्स रेयर डिजीज पॉलिसी. सो इफ यू विल सी ओवर हियर दैट द दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 5 मेंबर पैनल बनाया है टू इम्प्लीमेंट द सेंटर्स रेयर डिजीज पॉलिसी. ठीक, तो अभी देखेंगे कि ये कमिटी का नाम क्या है, दैट इज नेशनल रेयर डिजीज कमिटी. इट विल लुक इनटू द केस ऑफ द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम rare disease and who are enrolled at AIIMS Delhi. The next is one liner. The first is Somalia to introduce direct universal suffrage in 2024. तो सोमालिया के जो गवर्नमेंट है they have declared that direct universal suffrage would be introduced with local elections set for June 2024. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज का मतलब कि यहाँ पे कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता रिलेटेड टू जेंडर और इनकम एक्सेट्रा. सो यहाँ पे एक एज होगा, जैसे इंडिया में होता है कि लाइक 18 ईयर्स का एज है, उसके ऊपर जो कोई भी है वो वोट कर सकता है. सो इट इज यूनिवर्सल सफरेज. The next is coming from the US. Biden and Republicans arrive at last minute agreement to raise US debt ceiling. तो फ्रेंड्स हमने ये न्यूज़ पहले किया भी था कि अगर प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो यूएस इज ऑन द पाथवे ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इज डेप्ट. And that debt was also very massive, around $31 trillion. But now here अब ये न्यूज़ पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ there has been an agreement and now the debt ceiling has been raised and now US will not default. So if you will see the paragraph, that is, this one is important. Raising the debt ceiling allows the government to keep borrowing money and remain solvent. The next is Pan the Over Award. तो यहाँ पर अगर आप देखें that French director Justine Triet, she has become the third woman ever to win the festival's top prize. That is director's award with the movie's name Anatomy of a Fall. Fine. So this is the first important information. Then best director went to Vietnamese born French filmmaker Tan Anh Hong for the Pot Dew film. Then best actor, it went to Japan's Koji Yakashu for Project Days. Then best actress, Turkey's Merve Dizdar for About Dry Glasses. Now from sports we have a very important news. Pranav ends a long wait for a title. So ये news क्या है? So HS Pranav, he has ended a 6-year long title drought with a 3-game win over China's Wang Hongyang in a men's singles finals at Malaysia Masters Super 500 badminton tournament. Okay, so he has won the Malaysia Masters Super 500 badminton tournament, HS Pranoy. So he has claimed his maiden BWF, that is World's Badminton Federation World Tour title. Okay, and he has become but also the first singles crown of the year for India. Now coming to the women's singles, then Akane Yamaguchi of Japan got the better of Indonesia's Zoya Mariska Tunjung by defeating her. So men's singles में it is HS Pranoy and in women's singles it is Japan's Akane Yamaguchi. Now coming to the explainer series, which is important today. Why is the 1.5 degrees Celsius target critical? So we are here discussing about the climate change, a very important topic from exam point of view, climate change. अब रिसेंटली आप लोगों ने एक WMO का रिपोर्ट पढ़ा होगा, मैंने वो डिस्कस भी किया था और डिटेल में. That is the World Meteorological Organization, which is one of the specialized agency of the United Nations, headquartered in Geneva, Switzerland. इसने एक रिपोर्ट निकाला है that is called as Global Annual to Decadal Climate Update 2023-27 and then the State of Global Climate 2022. इसमें ये प्रेडिक्शन है WMO का कि 2023 से लेकर 2027 के बीच में जो वर्ल्ड टेम्परेचर है ये पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो एक बेंचमार्क है उसको क्रॉस करेगा. ठीक, ये जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का which was endorsed during COP21, which is also called as Paris Climate Agreement. ठीक है, इसमें ये आया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में. तो यहाँ पे ये था कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस को ब्रीच करता है तो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे क्लाइमेट में. Fine, but now because of El Nino year, the WMO report predicts that in between these 2 years, we can see the temperature 1.1 or 1.2, 1.8 degree Celsius higher than the baseline temperature of
1850 to 1900 और व्हाट वी कॉल इट एज प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। उसके बाद जो टेम्परेचर 2022 में इट वाज ऑलरेडी 1.15 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बेस लेवल ऑफ 1850 to 1900 एंड बाय 2027 द रिपोर्ट सेज द एवरेज विल एक्सीड 1.5 डिग्रीज। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है इस टारगेट के बारे में बात चल रही है कि जब क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो जो एक नंबर था सबके दिमाग में वो था 2 डिग्री सेल्सियस, कि कुछ भी करो बट 2 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर ग्लोबली, कुछ भी करो। बट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आते आते इट वाज 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी दैट इज 2100 the global temperature should not exceed 2 degrees Celsius. Later, starting from Cancun COP16 in 2010 up to COP21, that is Paris Climate Agreement, 2 डिग्री सेल्सियस को 1.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर आर मैनी स्मॉल आइलैंड नेशंस व्हिच आर ऑलरेडी बियरिंग द बर्nt ऑफ राइज इन सी लेवल। जैसे कुछ दिन पहले भी हमने अंटार्कटिका के सी लॉस के बारे में पढ़ा था, तो because of that the smaller islands they are in more danger as compared to other countries. So this was also endorsed by the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC in 2018. उसके बाद 2018 में IPCC ने अपना एक रिपोर्ट निकाला on the impact of global warming. Okay, so it said कि क्या होगा जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और तब क्या होगा जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, so it said that frequent and recent intense heat waves, droughts, heavy precipitation, additional 10 centimeter rise in sea level, destruction of ecosystem, and mostly irreversible changes can be witnessed at 2 degree level. तो फिर उसके बाद जो टेम्परेचर जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के टारगेट पे रखा गया कि इसको इतना ही रखना है क्योंकि हमें स्मॉल आइलैंड नेशंस को भी बचाना है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि एक इंडेक्स है दैट इज क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इससे हमें पता चलता है कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, रशिया एंड कनाडा दे हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस इन मीटिंग देयर प्लेजेस। उसके बाद जो टॉप पॉल्यूटर्स हैं लाइक चाइना, ईरान एंड सऊदी अरेबिया दे रैंक लो इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस। ओके, तो अब उसके बाद कोविड-19 क्राइसिस आया, देन अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो गया। तो एनर्जी क्राइसिस से क्या हुआ कि जो ट्रांजिशन हम ग्रीन एनर्जी की तरफ करने वाले थे, आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज्ड। ओके, नाउ इफ यू विल सी दैट अब ये एल नीनो का साल चल रहा है जो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, सो इट विल फर्दर स्ट्रेंथन दिस ईयर लीडिंग टू राइजिंग टेम्परेचर। सो वी कैन सी 2023-27 period where the temperature is going above 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज। उसके बाद क्रायोस्फीयर मतलब वो जोन अर्थ का जहाँ पे स्नोज होते हैं, तो दे आर श्रिंकिंग। देन देयर इज मास लॉस ऑफ ग्लेशियर्स इन हाई माउंटेन्स लाइक एशिया, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। उसके बाद देयर इज अलार्मिंग रेट ऑफ वार्मिंग ऑफ आर्कटिक ओशन, देन ग्रीनलैंड आइस शीट इज ऑल्सो मेल्टिंग एट अ फास्टर रेट। ओके, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम जो होगा वो होगा फूड इनसिक्योरिटी का। अब आप कहेंगे कि क्लाइमेट और फूड कैसे लिंक्ड है। सो इफ यू विल सी, जो क्लाइमेट चेंज होता है इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स क्रॉप यील्ड, देन इट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल पेस्ट एंड डिजीज। देयर आर सर्टन कंट्रीज इन अफ्रीका लाइक इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया, येमेन एंड अफगानिस्तान, दे आर ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट फूड शॉर्टेजेस। ओके, उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी विल ऑल्सो इंक्रीज बाई अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक ड्राउट, साइक्लोन्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया जो साउथ एशिया में आते हैं, यहाँ पे हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि फ्लड्स इन पाकिस्तान दे अफेक्टेड मैनी पीपल एंड डिस्प्लेस्ड अबाउट 8 मिलियन पीपल विद इन द कंट्री। उसके बाद हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली जो कंट्रीज होती हैं, इथियोपिया, सोमालिया एंड केन्या, सो दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग ड्राउट कंडीशन सिंस 2020। उसके बाद जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है दे आर सीइंग फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल। तो दोनों रीजंस की वजह से देयर विल बी फूड शॉर्टेज। ठीक, अब फूड शॉर्टेज की वजह से अब देखेंगे कि क्या होता है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मास डिस्प्लेसमेंट दैट आर बीइंग सीन। If you will see Syria and Yemen, thousands have been displaced owing to floods, storms and heavy snowfall. अब हम बात करें इकोसिस्टम पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा एक एक करके।
So if you will see that aquatic and terrestrial ecosystem have also not been immune to such changes in climate patterns. Why? There are phenological shift, phenology जो होता है वो शिफ्ट हो रहा है. ओके उसके बाद माइग्रेटरी स्पीशीज के जो पॉपुलेशन हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जैसे सब सहारन अफ्रीका में. देन वार्मिंग अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस कैन प्रूव लीथल फॉर कोरल रीफ विच आर ऑलरेडी प्रोन टू ब्लीचिंग. इफ नाउ वी सी द WMO फिगर, सो WMO क्या कहता है? that extreme weather anomalies have caused the deaths of 2 million people and incurred $4.3 trillion in economic damages over the past 50 years. Then in 2020 to 21 there were 22,608 disaster deaths which were recorded globally. तो जो सिनेरियो बन रहा है तो वो काफी वरीसम बन रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में February 2023 was recorded as the hottest month since record keeping began in 1901. उसके बाद 2022 में इंडिया witnessed extreme weather events for 80% of the days. The next is Indian monsoons were wetter than usual last year after recording extreme heat during the pre-monsoon period, resulting in wildfires in Uttarakhand and acute food shortages. Then what India is doing? Now see, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो है 8th with a high performance after Denmark, Sweden, Chile and Morocco. So India is attempting to balance its development needs with ongoing climate action both at domestic and international levels. जैसे कुछ डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया has started a mission called as Green Hydrogen Mission where it is a green transition from fossil fuel to clean source of energy. So here India is aiming to reduce the greenhouse gas emission. Then India at the international level has started International Solar Alliance, then Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. अब हम आते हैं एक कंपनी में, Can China's Micron bans benefit Samsung and Skyhings. तो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चलता रहता है कि उन्होंने एक कंपनी बैन किया तो उन्होंने एक और कंपनी बैन कर दिया, तो उसके इर्द गिर्द अब क्या हुआ है कि चाइना ने अब बैन कर दिया है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इन की इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अब चाइना ने कहा है कि दैट मेजर चाइनीज कंपनीज आर नॉट अलाउड फ्रॉम बाइंग माइक्रॉन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि द बैन इट टारगेट्स द यूएस मेमोरी चिप मेकर. तो माइक्रॉन कहाँ की कंपनी है? यूएस की. टू कम इनटू चाइना. फाइन. तो यहाँ पे देखेंगे कि चाइना का कहना है कि that it initiated the investigation into Micron's products in early April to review the China supply chain and critical information infrastructure, but the ban has now left Chinese firms scouting for an alternative memory chip maker. Now who can become the alternative memory chip maker? So there are two companies which can replace Micron. One you can see is Samsung. The next you can see is SK Hynix. These are the two companies which can replace Micron in China. अब अगर हम बात करें तो क्या यूएस को इसमें कुछ लॉस होगा अगर माइक्रॉन अपना प्रोडक्ट नहीं भेजेगा चाइना में? तो सी जो चिप है उसका देखिए रोल क्या होता है कम्युनिकेशन में. सो माइक्रॉन इट मेक्स मेमोरी एंड स्टोरेज चिप सेट्स विच आर यूज्ड इन फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स एंड द कंप्यूटर. Then we will see that memory chips are also used in data centers. These chipsets help in faster transfer of digital information and they are used in automotive, electronics and telecommunication equipment. उसके बाद अगर आप देखें चाइना का मार्केट माइक्रॉन का 10% वेटेज रखता है. ठीक. पर उसके बाद भी यहाँ पे बैन लगा हुआ है. Now if you will see सैमसंग की हम बात करें तो ये भी एक मार्केट लीडर है. सैमसंग और स्काईहिंग्स, they are both two Korean multinationals and then along with Micron they are top 3 memory chip makers globally. Fine. तो इनका जो शेयर है लाइक जैसे सैमसंग का देखो it has 43% market share in dynamic random access memory DRAM and 35% share in NAND flash product. Okay. The next is the geopolitical issues involved over here. अब देखिए यहाँ पे क्या है. The two companies are in a tight corner as the trade conflict between the US and China puts South Korea's technology firms at the center. अब देखिए यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल खेलता है. पहली बात तो चाइना ने जो बैन किया है तो वो भी एक जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है. अब साउथ कोरिया जो है वो यूएसए के नज़दीक है, तो अब क्या साउथ कोरियन कंपनीज चाइना के साथ ट्रेड करेंगी, वो एक इशू है इसमें. सो दे आर इन टाइट कॉर्नर.
दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम देखें पैंडेमिक के टाइम, तो जो मेमोरी चिप प्राइसेस थे दे वेंट स्काई हाई एट द पीक ऑफ द पेंडेमिक एंड देन दे स्टार्टेड कूलिंग ऑफ इन लेट 2021। तो जैसे कि आप देखेंगे कि उस वक्त इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था कि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल्स के दाम थे वो काफ़ी ऊपर भागने लगे थे, मतलब शॉर्टेज हो गई थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चिप के वजह से बन नहीं पा रहे थे। फाइन। अब हम एक डेटा लेते हैं। मोस्ट सोल्जर्स किल्ड इन एक्शन ड्यूरिंग यूएन मिशंस वेयर इंडियन। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपना 75th एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहा था अपने पीस कीपिंग ऑपरेशन का। जो पहला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो पहला मिलिट्री ऑब्जर्वर मिशन था, इट वाज सेंट टू ओवरसी द इजरायली अरब आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट इन मई 1948। तो उसी को कमोमरेट कर रहे थे। तो इसमें ट्रिब्यूट दिया जा रहा था अराउंड 4000 पीस कीपर्स को। फाइन। अब अगर हम डेटा देखें कंट्री वाइज डेथ के बारे में, सो इन टोटल 1115 peacekeepers have died on field due to malicious act, okay, of which 69 are from India, followed by 64 from Chad, Ghana 53, Nigeria 44 and Pakistan 44. अभी तक टोटल 4298 peacekeepers have died, 1481 due to illness, 1386 due to accident and 316 due to other causes and the rest due to malicious act. अब इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो डेडलीस्ट मिशन था इंडिया के हिसाब से, दैट वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन कॉन्गो फ्रॉम 1960 टू 1964। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि 15 इंडियन आर्मी दे डाइड ड्यू टू मैलिशियस एक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नवंबर 24 1960 में एक हिंदू में आर्टिकल आया था विच डिस्क्राइब द अटैक ऑन द कोंगोली सोल्जर्स ऑन इंडियन ऑफिसर्स इन डिटेल। तो यहाँ पे है कि इंडियन आर्मी मेजर्स जो थे दे वर टेकिंग आउट ऑफ द रेजिडेंस बाय फोर्स एंड देन दे वर सीवियरली इंजर्ड विद द राइफल बट्स। देन अ कर्नल हु वाज इन चार्ज ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट वाज स्टॉप्ड बाय कोंगोली सोल्जर्स हु हैड सबमशीन गन्स एंड हिज कार वाज टेकन अवे। ओके। उसके बाद if you will see the United Nations operation in Somalia too between 1993 and 1995, it resulted in the loss of 12 Indian troops. Then United Nations mission in South Sudan, it resulted into death of 7 Indian troops. अगर अब हम देखें कंट्री वाइज नंबर ऑफ मिलिट्री पुलिस पर्सोनल, ओके, तो यहाँ पे देर आर 6097 पर्सोनल, जहाँ पे सबसे टॉप पे है बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल एंड देन इंडिया थर्ड, then it is followed by Rwanda and Pakistan. Then 4 of the top 5 contributors they come from the Indian subcontinent. Now if you will see that most Indians they are part of the United Nations mission in South Sudan, followed by United Nations stabilization mission in Congo and United Nations interim force in Lebanon. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.